بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لٹریچر ود WB۔ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پولائٹنس اینڈ انٹریکشن۔ اس میں ہم پولائٹنس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی اسٹریٹجیز کے بارے میں دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انٹریکشن کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ پاس پیپر کے لحاظ سے بات کریں تو پولائٹنس کے لیے یہ والا کوسچن جو ہے وہ پیپر میں پوچھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹریکشن۔ انٹریکشن ریفرز ٹو دا وے، یعنی کہ ایک کمیونیکیٹو وے ہے جس میں کہ وہ ایک کنوے کر رہے ہیں ایک میننگ فل میسج تھرو لینگویج۔ ریئل لائف کنورسیشن ہو سکتی ہے، اس میں ہم لوگ صرف اور صرف ورڈز ہی انوالو نہیں ہوتے بلکہ اس میں کانٹیکسٹ بھی انوالو ہوتا ہے، ٹون، جیسچرز اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کی، اسپیکر کی اور لسنر کی آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو انٹریکشن ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ کس طرح سے لوگ لینگویج کو یوز کرتے ہیں اپنا ایک گول اچیو کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انٹریکشن میں کچھ فیکٹرز آ جاتے ہیں جیسا کہ پولائٹنس، امپلیکیچر۔ پولائٹنس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اور امپلیکیچر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوآپریٹو پرنسپلس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جو کہ دیے تھے پاول گریس نے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر مزید بات کریں تو یہ جو انالائز کرتی ہے کمیونیکیشن کو بیونڈ دا لٹرل میننگ۔ صرف اور صرف لٹرل میننگ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس میں اسپیکر کی انٹینشنز کو بھی سمجھا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا میسج جو ہے وہ کنوے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں پولائٹنس کی۔ پولائٹنس جو ہے یہ ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لینگویج کو اس طرح سے استعمال کرے کہ وہ جس میں کہ ہم لوگوں کو رسپیکٹ نظر آئے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں وہ مینٹین کرے سوشل ہارمونی کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سوشل ریلیشن شپس کو بھی مینٹین رکھنے کی کوشش کرے ڈیورنگ کمیونیکیشن، یعنی کوئی بھی ایسے ورڈز نہ یوز کیے جائیں جو کہ ہارش ہوں، ایک رسپیکٹ فلی بات کی جائے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں پولائٹنس میں۔ یہ لنگوسٹکس بھی ہو سکتا ہے اور نان لنگوسٹکس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دوسرے ٹرم کی بات کریں، ٹیکنیکل ٹرم ہے فیس، جس کا کیا مطلب ہے ایک پبلک سیلف امیج جو کہ ہر پرسن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریفر کرتا ہے کہ ایموشنل اور سوشل سینس آف سیلف that everyone has and expect everyone else to recognize، یعنی کہ ہر ایک انسان کا ایک فیس ہوتا ہے، ایموشنز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ کیسا سوشل سینس ہے کسی بھی انسان کا جو کہ وہ اس نے اپنا ایک رکھا ہوا ہے، ایک مینٹین کیا ہوا ہے، دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو اسی کے فیس سے جانا جائے۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کریں کسی کے اخلاق کی، کہ اگر ہم لوگ اکثر ہی بات کرتے ہیں کہ اس بندے کا اخلاق کتنا اچھا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے سوسائٹی میں اپنا ایک ایسا فیس کریٹ کیا ہوا ہے، اپنے ایک ایسا فیس مینٹین کیا ہوا ہے کہ سب لوگ اس کو اس کے اخلاق کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک فیس، ٹھیک ہے، کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پولائٹنس۔ پولائٹنس جو ہے اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو ایز مینز امپلائڈ ٹو شو اویئرنیس آف این ادرس پرسنز فیس، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسروں کے پرسن کے فیس کو کس طرح سے ہم لوگوں نے جاننا ہے، یہ ہمیں پولائٹنس بتاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پولائٹنس کے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ویٹر کی اٹینشن گین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بل دے آ کے۔ آپ اس بات کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ ریکویسٹ، یعنی کہ وہ لیس پولائٹ ہوگا، اور ایک ہوگا پولائٹ ریکویسٹ، وہ مور پولائٹ ہوگا۔ کس طرح سے کہ آپ جو کو اپنے ہاتھ کو ہلائیں گے اور بولیں گے ہے کین آئی گیٹ دا بل، اور دوسرا یہ ہوگا، یہ لیس پولائٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ زیادہ پولائٹلی سے بولیں گے، یعنی کہ آپ پہلے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریں گے ویٹر کے ساتھ، اس کے بعد آپ اسمائل دیں گے اور اس کے بعد آپ بولیں گے ایکسکیوز می کوڈ آئی پلیز ہیو دا بل، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا، یہ مور پولائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں پازیٹیو پولائٹنس کی۔ پازیٹیو پولائٹنس جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس میں کہ ہم لوگ ایک دیکھتے ہیں کہ سیٹسفائی دا ڈیزائر فار بینگ لائکڈ اینڈ اپریشیٹڈ، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ انوالو کرتے ہیں فرینڈلینس کو، اور اس میں سولیڈیٹری بھی آ سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک فیس سیونگ ایکٹ ہے، جس طرح سے ایک دوسرے بندے کا جو کہ کنسرن کرتا ہے پرسن پازیٹیو فیس، ٹھیک ہے، جو کہ ہم لوگ کو کیا شو کروائے گا، سولیڈیٹری کو شو کروائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایمفیسائز کو شو کروائے گا۔ دونوں اسپیکر جو ہیں وہ ایک ہی چیز چاہتے ہوتے ہیں، دونوں کا ایک ہی کامن گول ہوتا ہے پازیٹیو پولائٹنس میں، تو یہ ہوتی ہے پازیٹیو پولائٹنس۔ ایگزامپل کے لیے سمجھتے ہیں، امیجن کریں کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ آپ کو اپنی ایک پارٹی پہ انوائٹ کرتا ہے، لیکن آپ اسی رات اسی ٹائم پہ آپ کسی اور جگہ پر بھی کمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہیں اور جگہ پہ بھی جانا ہے، اور آپ کس طرح سے ان کو انکار کریں گے، تو آپ کس طرح سے اس کو بولیں گے I would love to come to your party but I have an other commitment that evening
आई एम रियली सॉरी बट आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक टाइम। यानी कि आप उसको जो है वो सॉरी करें, एक अपोलोजाइज, एक रेग्रेट आप फील करें, आप उसको एक्सप्रेस ये करवा रहे हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं तुम्हारी पार्टी में आता, लेकिन मेरी और किसी और जगह पर भी कमिटमेंट है तो मुझे वहां पर जाना है। ठीक है, आप एक हिसाब से उसे सॉरी भी कर रहे हो। ठीक है, आप ये क्या होता है, फेस सेविंग एक्ट होता है, ये होती है पॉजिटिव पोलाइटनेस। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव पोलाइटनेस। नेगेटिव पोलाइटनेस जो है ना, ये स्ट्रेटेजी आती है डेफरेंस में। डेफरेंस हम आगे जाके स्ट्रेटेजी को पढ़ेंगे, सॉलिडिटी की भी पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी और इसकी भी पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से फिलहाल समझ लें। ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक इंडिविजुअल है ना, वो अपनी फ्रीडम का ख्याल रखता है, अपनी डिजायर्स का ख्याल रखता है, दूसरों की डिजायर्स का ख्याल नहीं रखता, अपनी डिजायर्स का ख्याल रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर आप एक कोलीग से फेवर लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप उसकी टाइम की जो है वो रिस्पेक्ट भी करें, और साथ में आपको ये भी पता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी हेल्प करेगा, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप उसे हेल्प लें। ठीक है, यानी कि आप ये बोलेंगे कि मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा है कि मैं आपको इस टाइम तंग कर रहा हूँ, लेकिन ये कि क्या आप मेरी इस टास्क में मदद करेंगे। तो इस केस में आप एक नेगेटिव पोलाइटनेस को जो है वो तरजीह दे रहे हैं, आप एक नेगेटिव पोलाइटनेस यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान इतना वो बिजी है और उस पर इतना ज्यादा काम का बोझ है, लेकिन फिर भी आप जाके उससे हेल्प की अपील कर रहे हैं, उससे जाके फिर भी आप जाके बोल रहे हैं कि क्या आप मेरी इस टास्क में मदद करेंगे। तो ये होती है नेगेटिव पोलाइटनेस। उसके बाद हमारे पास पोलाइटनेस के जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि पहला है सेल्फ एंड अदर से नथिंग। इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि आप जो हैं वो एक, या तो आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हेल्प मांगते वक्त, या फिर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलेंगे, यानी कि आप ये नहीं बोलते इसमें कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाए कि हाँ, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप वो खुद आपकी हेल्प कर दे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि आप ना, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप वहाँ पे पहुँचे हैं और आपने नोट्स लेने के लिए अपनी नोटबुक खोली है और आपने वो रख दी है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि आपके पास तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास पेन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये लगता है कि जो आपके साथ शख्स बैठा हुआ है वो आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो आपको पेन जो है वो प्रोवाइड करेगा। आप क्या करेंगे, इसमें क्या है, इस सिनेरियो में सबसे पहले आप जो है ना वो पहली स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? आप पहली चीज को चूज करेंगे, वो क्या कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, से नथिंग। ठीक हो गया। क्या करेंगे कि आप अपने बैग में इधर उधर हाथ मारेंगे। ठीक है, अपनी पॉकेट्स चेक करेंगे, दोबारा से बैग में देखेंगे। ठीक है, उस वक्त तक आप ये करते रहेंगे जब तक जो आपके साथ बैठा हुआ शख्स है वो खुद नहीं जान लेता कि आपको पेन की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप जो है वो लुकिंग इन द बैग, ठीक है, आप देख रहे हैं अपने बैग में, और जो अदर्स हैं, ठीक है, अदर क्या करेंगे कि आपको ऑफर कर देगा पेन के, हियर यूज दिस। ठीक हो गया। तो ये होती है सेल्फ एंड अदर की, कुछ भी नहीं बोला लेकिन दूसरे को समझ आ गया है कि आपको ये चीज चाहिए। और अक्सर ही हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत ना पड़े, और हमारे साथ बैठा जो शख्स है वो खुद ही इस चीज को समझ ले कि हाँ, हमें इस चीज की जरूरत है, और वो हमारी जरूरत को पूरा कर दे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है से समथिंग ऑफ एंड ऑन रिकॉर्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कुछ कहने की। ठीक है, ये नहीं, हम लोग डायरेक्ट नहीं कहते कि हमें इस चीज की जरूरत है, ये नहीं कहते। हम लोग ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे कि हमारा जो साथ बैठा शख्स है वो खुद ही इस चीज को समझ ले कि हमें किस चीज की जरूरत है। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल के साथ ही चलेंगे कि आप जो है वो पेन को जो है वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आई फॉरगॉट माई पेन, या फिर आप बोलेंगे हम आई वंडर वेयर आई पुट माई पेन। ठीक है, मतलब इस तरह से आप बोलेंगे। तो इसके इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि ये आप डायरेक्टली नहीं हेल्प के लिए बोल रहे, आप दूसरे को डायरेक्टली नहीं कह रहे कि मुझे पेन की जरूरत है। तो फिर अगर तो उसने सुन लिया है तो ठीक है, ये हो जाएगा ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, ये ऑफ रिकॉर्ड में आएगा, और वो आपको ऑफर कर देगा पेन का। ठीक है, कि ये लें भाई, ये ले लें, पेन ले लें। ठीक है, लेकिन अगर उसने ये बात नहीं समझी, ठीक है, अगर उसने ये बात नहीं समझी, तो उस वक्त आपको जाना पड़ेगा ऑन रिकॉर्ड पे। वो क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट जो है वो अब करनी पड़ेगी कि सामने वाला बंदा आपको दे दे पेन। ठीक है, उसमें आप लोग क्या बोलेंगे कि गिव मी अ पेन। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे लेंड मी योर पेन। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं, इसमें आपको बोलना पड़ेगा आपको क्या चीज चाहिए। ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड में आप नहीं बोलते कि आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ, मैं तो अपना पेन भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, कि अगला बंदा आपकी खुद हेल्प कर दे। लेकिन अगर तो उसने वो नहीं सुना, वो नहीं समझा इस बात को कि आपको क्या चाहिए, आप ये क्यों कह रहे हैं, तो फिर आपको ऑन रिकॉर्ड पे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद इसकी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। स्ट्रेटजीज में है, इसमें जो है वो एक सॉलिडिटी स्ट्रेटजी है, ये पॉजिटिव पोलाइटनेस में आती है। इसमें क्या होता है कि
इसमें हम लोगों की जो टोन होती है वो बहुत फ्रेंडली होती है, ठीक है। हम लोग आपस दोस्तों के दरमियान में ये सॉलिडरी स्ट्रेटजी आ जाती है। ये होल द ग्रुप भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल भी इसको सेपरेटली यूज़ कर सकता है। यानी कि अगर इसके लिंग्विस्टिकली अगर इसके हिसाब लगाया जाए तो ये क्या होगा कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देगा, यानी कि इसमें हम लोग निकनेम्स को यूज़ कर सकते हैं और समटाइम्स अब्यूसिव टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि मेल्स अक्सर यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में मजाक में। और साथ ही साथ इसमें एक ही डायलेक्ट शेयर किया जाता है और साथ में एक ही स्लैंग एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इसमें जो टर्म्स यूज होती है ना वो होती हैं वी की और लेट्स की, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्या आपका दोस्त बोलता है कि कम ऑन लेट्स गो टू द पार्टी, एवरीवन विल बी देयर, वी विल हैव फन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग एक कैजुअल तरीके से बोल रहे हैं, बहुत एक इनफॉर्मल लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों के साथ। तो ये हो जाती है सॉलिडरी स्ट्रेटजी। उसके बाद है हमारे पास डेफरेंस स्ट्रेटजी। ये आ जाते हैं नेगेटिव पोलाइटनेस में। इसमें हम लोग को क्या होता है कि इसमें हर एक को अपनी फ्रीडम का हक होता है, ठीक है, और दूसरों को ये होता है कि वो उसके फ्रीडम को समझे। ये भी जो है ये भी होल ऑफ द ग्रुप भी हो सकती है और साथ ही साथ ये इंडिविजुअल भी इसको कर सकता है। यानी कि इसमें इसमें ना फॉर्मल पोलाइटनेस आ जाती है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को फॉर्मल पोलाइटनेस भी बोल सकते हैं। पिछली ही एग्जांपल की बात करें तो उसमें जो है ना वो तो दोस्त बात कर रहे हैं ना आपस में कि वी विल हैव फन, ठीक है, लेट्स गो, कम ऑन, ठीक है, इस किस्म के लैंग्वेज इस्तेमाल करना। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना हम लोग इस किस्म की लैंग्वेज यूज करेंगे कि बहुत पोलाइट होगी। देयर इज गोइंग टू बी द पार्टी, इफ यू कैन मेक इट, इट विल बी फन, ठीक है। ये जो है ये फॉर्मल लैंग्वेज यूज हो रही है। पिछले में जो हो रही थी वो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज हो रही थी, वो फ्रेंड्स के दरमियान वो सेम डायलेक्ट और स्लैंग को यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज रखनी पड़ती है और ये आ जाती है कि हर एक की फ्रीडम का जो है वो उनके डिजायर्स का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि पोलाइटनेस और इंटरेक्शन के बारे में मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।